اور اسٹریٹ آف ہارمنز کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت سنگین اور پیچیدہ جیو پولیٹیکل صورتحال پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ ایران اور امریکہ اور مشہور اسٹریٹ آف ہارمنز کے گرد گھومتا ہے۔ گزشتہ رات امریکہ نے ایران پر فضائی حملے کیے جن میں ایران کے نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ اس اقدامات کے بعد مشرق وسطیٰ میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے اور دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ تنازع کس رخ پر جا سکتا ہے اور اس کا عالمی سطح پر خصوصاً معیشت، توانائی اور تیل کی قیمتوں پر کیا ممکنہ اثرات پڑ سکتا ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور آئیے سب کچھ تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ دوستو، صورتحال اس وقت مزید سنجیدہ ہو گئی ہے جب ایران کے پارلیمنٹ نے ایک تاریخی اور خطرناک فیصلہ کیا۔ پارلیمنٹ نے اسٹریٹ آف ہارمنز کو بند کرنے کی منظوری دے دی ہے، جو کہ ایک انتہائی اہم آبی گزرگاہ ہے۔ یہ واٹر وے خلیج فارس کو خلیج عمان سے جوڑتا ہے اور دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل اسی راستے سے ہوتی ہے۔ ایران کا یہ قدم نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی ایک بڑا دھچکا بن سکتا ہے۔ امریکہ نے اس فیصلے پر سخت رد عمل دیا ہے اور اسے ایران کی معاشی خودکشی قرار دیا ہے۔ امریکہ حکام نے فوری طور پر چین سے رابطہ کیا اور اس سے درخواست کی ہے کہ وہ ایران پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ اس فیصلے کو واپس لے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ایران نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ کیا یہ رد عمل امریکی حملوں کا یا اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت عملی ہے؟ ہم ان تمام پہلوؤں کو تفصیل سے گنیں گے۔ دوستو، اسٹریٹ آف ہارمنز دنیا کے اہم ترین سمندری راستوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک قدرتی آبی گزرگاہ ہے جو ایران اور عمان کے درمیان واقع ہے اور خلیج فارس کو خلیج عمان اور بحیرہ عرب سے جوڑتی ہے۔ اس کی جغرافیائی اہمیت بے حد زیادہ ہے کیونکہ عالمی سطح پر استعمال ہونے والے تیل کا تقریباً 20 سے 30% حصہ اسی راستے سے گزرتا ہے۔ صرف تیل ہی نہیں بلکہ بڑی مقدار میں مائع قدرتی گیس LNG بھی اس راستے سے بین الاقوامی منڈیوں تک پہنچتی ہے۔ اس کا سب سے تنگ حصہ محض 21 ناٹیکل میلز پر جڑا ہے، یعنی کوئی بھی رکاوٹ یہاں فوری طور پر پوری شپنگ کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس کے شمال میں ایران کی سرزمین ہے جبکہ جنوب میں عمان کا ایک مختصر ساحلی علاقہ۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، قطر اور عراق جیسے خلیجی ممالک کا تقریباً سارا تیل اسی راستے سے دنیا بھر میں ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اگر اسٹریٹ آف ہارمنز کو بند کر دیا جائے تو صرف خلیجی ممالک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی معیشت ایک بڑے بحران سے دوچار ہو سکتی ہے۔ تیل اور گیس کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہو سکتا ہے اور توانائی کی کمی کئی ملکوں میں صنعتی سرگرمیوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ایران کی جانب سے اسٹریٹ آف ہارمنز کو بند کرنے کا اعلان ایک جذباتی نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک فیصلہ ہے جو مختلف اندرونی اور بیرونی عوامل کا نتیجہ ہے۔ آئیے ان وجوہات کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ امریکی فضائی حملے۔ حالیہ دنوں میں امریکہ نے ایران کے نیوکلیئر تنصیبات پر فضائی حملے کیے جو ایران کے لیے ناقابل قبول تھے۔ ایران نے پہلے ہی خبردار کیا تھا کہ اس کے نیوکلیئر تنصیبات کو نشانہ بنانا اس کی ریڈ لائن عبور کرنے کے مترادف ہوگا۔ اس حملے نے تہران کو مجبور کر دیا کہ کوئی سخت اور علامتی رد عمل۔ سپریم لیڈ پر حملے کی کوشش۔ کچھ رپورٹس کے مطابق امریکہ نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس حملے میں وہ زخمی تو نہیں ہوئے لیکن انہیں ایک محفوظ ہینکر میں منتقل ہونا پڑا۔ یہ حملہ ایران کے لیے ایک بڑا سیاسی اور قومی صدمہ تھا۔ نیوکلیئر پروگرام پر NPT ایران اب یہ عندیہ دے رہا ہے کہ وہ نان پروفیشنل ٹریڈی NPT سے علیحدہ ہو سکتا ہے اور اپنے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر ہتھیاروں کی طرف لے جانے پر غور کر رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمنز کی بندش اسی پیغام کو مزید مضبوط کرتی ہے کہ ایران اب دفاعی کی بجائے جارحانہ حکمت عملی پر چل رہا ہے۔ داخلی دباؤ اور فوجی اثر و رسوخ۔ ایران کی فوج خاص طور پر پاسداران انقلاب IRGC اور سخت غیر سیاسی دوڑے حکومت پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ وہ امریکہ کے خلاف طاقتور جواب دے۔ اسٹریٹ آف ہارمنز کو بند کرنا صرف اقتصادی نہیں بلکہ ایک نفسیاتی ہتھیار بھی ہے، دنیا کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ ایران کمزور نہیں ہے
खुद मुख्तारी का दावा। ईरान का ये भी कहना है कि चूँकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का एक किनारा इसकी हदूद में आता है, इसलिए इसे कानूनी और खुद मुख्तार इख्तियार हासिल है कि वो इस रास्ते को खोले या बंद करे। ईरान इसे अपने कौमी सलामती और खुद मुख्तारी के हक़ का हिस्सा समझता है। अगर ईरान वाकई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को बंद करने के अपने फ़ैसले पर अमल करता है तो दुनिया को कई सतहों पर संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ सिर्फ एक बहरी रास्ता नहीं बल्कि एक आलमी तवानाई शरेआन है। हर साल तकरीबन $1 ट्रिलियन से ज़्यादा मालियत का तेल और गैस इसी रास्ते से दुनिया को मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो इसकी वजह से तेल की फराहमी में शदीद कमी आएगी, जिसके नतीजे में आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगेंगी। तजियाकारों के मुताबिक तेल की कीमतें $50 से बढ़कर 150 या हत्ता के $200 फ़ी बैरल तक जा सकती हैं। इस तरह की अचानक महंगाई पूरी दुनिया में महंगाई की लहर को जन्म दे सकती है। खुराक, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और हर चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, जिससे आम आदमी बराह रास्त मुतासिर होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करना बैनुल-अक़वामी कानून, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के कानून बहरा के ख़िलाफ़ वर्दी तस्वुर किया जाएगा। ईरान इस मादे का रुकन है जिसका तकादा है कि तमाम अक़वाम इस किस्म के अहम बैनुल-अक़वामी आबी रास्तों को खुला रखें ताकि आलमी तजारत मुतासर न हो सके। लेकिन ईरान का मौक़िफ़ ये है कि जब इसकी खुद मुख्तारी सलामती और कौमी मफादात को ख़तरा हो तो इससे ये हक़ हासिल है कि वो इसे इक़दामात करे जो दिफाई नौइयत के हों, यानी वो ऐसे आलमी कानून की बजाय खुद दफा के ज़मरे में शुमार करता है। ख़तरनाक तरीन पहलू ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंदिश से एक वसी फ़ौजी तनाज़ा का दरवाज़ा खुल सकता है। अमेरिका की फ़फ्ता फ्लैट बहरीन में मौजूद है, जो इस खिते में बहरी निगरानी और दफाई कार्रवाइयों के लिए तैनात है। अगर ईरान स्ट्रेट को बंद करता है तो पासदाराने इनकलाब IRGC मुमकिन तौर पर अपने तेज़ रफ्तार नेवल बोट्स, ज़ेर आब बारूदी सुरंगों और ड्रोन्स पर हत्ता के अबदूज़ों के ज़रिए अमेरिकी या इसराइली बहरी जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। ऐसी किसी भी कार्रवाई से एक खुली जंग छिड़ सकती है जो सिर्फ खलजी तक महदूद नहीं रहेगी। ईरान पहले भी इस बात का अंदिया दे चुका है कि वो ऐसी सूरत में अमेरिका और इसराइल मफादात से वाबस्ता आयल टैंकर्स को निशाना बना सकता है। ये हमले या तो खुफिया अंदाज में होंगे या बराह रास्त अस्करी कार्रवाई के तौर पर, जिससे तेल की तजारत मज़ीद मुतासर होगी और समंदरी रास्तों पर ख़तरा बढ़ जाएगा। ईरान पर दबाव डालने के लिए अमेरिका ने बराह रास्त चीन से मदद मांगी है और इसकी कई अहम वजूहात हैं। चीन और ईरान के दरमियान गुज़श्ता कई बरसों से गहरे स्ट्रेटेजिक तल्लुकात कायम हैं। चीन रोज़ाना तकरीबन 1 मिलियन बैरल तेल ईरान से ख़रीदता है और वो ईरान में $400 अरब तक की सरमायाकारी के मादे पर कर चुका है, जिनमें तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दफाई ताउन शामिल हैं। चीन का ये माशी असर ईरान पर एक दबाव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करे। अगरचे अमेरिका ईरान पर दबाव डाल रहा है, लेकिन अमेरिकी क़यादत ख़ास तौर पर साबिक़ा सदर डोनाल्ड ट्रंप की कई बार ये वाज़ह कर चुके हैं कि वो किसी नई जंग में उलझना नहीं चाहते। वो समझते हैं कि जंग अमेरिकी फ़ौजियों की जान को ख़तरे में डालेगी और मुल्की मईशत पर मनफी असर डालेगी। इसीलिए अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत की बजाय सफारती ज़राए से मसले को हल करने की कोशिश कर रहा है और इसमें चीन एक अहम खिलाड़ी बन कर सामने आया है। चीन खुद भी इस सूरत हाल से बेहद मुतासिर हो सकता है। इसकी 40% तवानाई की ज़रूरत खलीजी ममालिक से पूरी होती है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की बंदिश चीन की सनत, बरामदात और मईशत को शदीद नुकसान पहुँचा सकती है। इसीलिए चीन की भी कोशिश होगी कि इस तनाज़े को हवा देने की बजाय ईरान को पीछे हटने पर आमादा करे। इस सारी सूरत हाल में चीन एक नहायत नाजुक और मुतसाद पोजीशन में खड़ा है। एक तरफ इसके पास अपने माशी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है और दूसरी तरफ इसके जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली और ईरान से तल्लुकात भी दाव पर लगे हुए हैं। माशी मफादात को ख़तरा। चीन दुनिया की सबसे बड़ी सनती माशियों में से एक है
और इसकी तवानाई की बड़ी ज़रूरत खलिजी ममालिक से पूरी होती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ बंद हो जाता है तो चीन को तेल और गैस की फराहमी में शदीद रुकावट का सामना होगा, जिससे न सिर्फ इसकी फैक्ट्रियाँ बल्कि इसकी बरामदी मार्केटें भी मुतासिर हो सकती हैं। नतीजन आलमी महंगाई में इजाफा होगा, जो बराह रास्त चीनी माशियत को नुकसान पहुँचाएगा। चीन ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एक इलाकाई तनाज़ा इसकी माशियत को हिला कर रख दे। जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली। चीन अमूमी तौर पर अमेरिका के आलमी बलादस्ती को चैलेंज करने की कोशिश करता है और इसी पॉलिसी के तहत वो ईरान के साथ करीबी स्ट्रक्चर तल्लुकात रखता है। दोनों ममालिक ने हालिया बरसों में दफ़ा और तवानाई तजारत के शोबों में वसी ताउन को फ़रोग़ दिया है, लेकिन यहाँ चीन एक मुश्किल में फंस गया है। अगर वो ईरान के खुलकर हमायत करता है तो वो आलमी सतह पर खुद को एक जारहा रियासत का हमायती ज़ाहिर करेगा, जो इसके साख को नुकसान पहुंचा सकता है। लिहाजा मुमकिन है कि एलानिया तौर पर चीन ईरान के साथ खड़ा नज़र आए, लेकिन पसे पर्दा वो तेहरान को तनाज़ा कम करने पर आमादा करे। गैर जमादार रहने की कोशिश। चीन की सफारतकारी की ख़ास बात यह है कि वो ज़्यादातर तनाज़ात में न्यूट्रल और गैर जमादार रहने की कोशिश करता है, ताकि वो बैक वक्त तमाम फ़रीक़ों के साथ तल्लुकात और बरकरार रख सकें। इसी वजह से चीन चाहेगा कि ये मसला बातचीत के ज़रिए हल हो, ताकि ना तो इसके मफादात मुतासिर हों और ना ही इसे किसी एक तरफ का खुल्ला साथ देना पड़े। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। मुस्तकबिल के लिए दो मरकज़ी इम्कानात सामने आ रहे हैं। इस सूरत में चीन सफारती तौर पर फ़ाल किरदार अदा करता है और ईरान पर दबाव डालता है कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ बंद करने का फ़ैसला वापस ले। चीन और दीगर बड़ी ताकतें मिलकर मुज़ाकरात का माहौल कायम करते हैं, जिससे हालात बदरीज पुरसकून होना शुरू हो जाते हैं। इस मंजर में ना सिर्फ अस्करी तसादुम टल सकता है, बल्कि तेल की कीमतें भी मुस्तकिम रहेंगी और आलमी मंडियों में एतमाद बहाल होगा। पूरी दुनिया खुसूसन तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त होगी। बदतरीन मंजरनामा। अगर चीन कोई मौसर किरदार अदा करने में नाकाम रहा तो या ईरान इसके मशवरे को नज़रअंदाज कर देता है तो फिर मामलात बहुत तेज़ी से फ़ौजी महाज आराई की तरफ बढ़ सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ में पहले से मौजूद अमेरिकी फ्लैट और इसके इत्तेहादी ममालिक बहरी जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए अस्करी कार्रवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। इसके जवाब में ईरान भी अपने बहरी फोर्स आबदूज़ों, ड्रोन्स और मिसाइल निज़ाम को हरकत में ला सकता है। ऐसी सूरत में एक वसी पैमाने की जंग छिड़ने का खतरा है, जो खिलजी ममालिक से निकलकर मशरिक़ वस्ता के दीगर हिस्सों या यहाँ तक कि आलमी सतह पर भी फैल सकती है। भारत पहले अपना तकरीबन 50% तेल स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ के रास्ते दरामद करता था, मगर अब इसने रूस, अमेरिका और दीगर ज़राए से दरामदात को मतनूब बना लिया है। ताहम रास्ता बंद होने से सप्लाई मुतासर और कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई में इजाफा होगा। भारत के पास 9-10 दिन का स्ट्रेटेजिक ज़ख़ीरा है और हुकूमत इस सूरत हाल पर खड़ी नज़र रखे हुए है। पाकिस्तान का इन्हिसार अब भी खिलजी तेल पर है, इसीलिए स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ की बंदिश इसे फौरी मुतासिर करेगी। ईंधन महंगा होने से महंगाई, ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव, रुपये की कदर में कमी का ख़तरा है। पाकिस्तान के पास महदूद ज़खायर और मुतबादिल ज़राए हैं, लिहाजा इसे तवानाई की पॉलिसी में बेहतरी लाना होगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ की जोग्राफियाई और माशी अहमियत को समझा, ईरान के हालिया इक़दामात का जायज़ा लिया और ये देखा कि इन फ़ैसलों के दुनिया भर में ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान पर क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं। हमने तेल की कीमतों, सप्लाई चीन और इन ममालिक की हुकूमत हिकमत अमलियों पर बात की। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती और फ़ायदेमंद लगी हो तो बराह करम वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप आइंदा आने वाली वीडियो से बाखबर रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। सवालात या तजवीज़ात ज़रूर शेयर करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है, इससे हम मज़ीद बेहतर मवाद ला सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।